Assalamu alaikum everyone. I'm Barrister Hamna Zain with you, and today we are going to discuss a very important topic, yet it has been very important, very serious, yet it is very confusing, and at the same time it has not been resolved. So why is that so? Before we move on to that, let me give you a brief introduction about myself, and this introduction is related to the topic that we're doing. So I have been practicing corporate law for the past 10 years, and I'm currently working at Wateen Telecom as a senior legal counsel. Now, prior to Wateen, I was working in Coca-Cola and KL Electric. So these multinational companies. Now, while I was in Coca-Cola, I was also looking after the ethics and compliance matters issues of the company. And since you're working as an in-house counsel, so there are a lot of compliance issues that comes in. Also, amongst other high court committees, I am also a co-chairperson of prevention of sexual abuse committee as well. So now let's start with today's topic. Today we're going to discuss workplace harassment. Now, when I said there, it's very confusing and it has been not solved as yet. Why? In the community, it is a global problem. Number one, when the word harassment comes to our mind, we always think that harassment means sexual harassment. It's true, but it not only means sexual harassment. From harassment have different kinds. So sexual harassment is one of the kinds of harassment. And number two, when the word harassment comes to our mind, we always think that is only applicable to women. So only females can bring an action. So females जो है वो उसके ऊपर action ले सकती हैं, आदमी नहीं ले सकते. These are all myths. ये wrong है. रॉन्ग इस तरह से है कि ये लिमिटेड अप्रोच इस पे नहीं होती. हरासमेंट जो है वो इट्स एप्लीकेबल टू बोथ फीमेल एंड मेल, दोनों के ऊपर हो सकती है वर्क प्लेस में. एंड ऑल्सो सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होती, इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ हरासमेंट होती है जो हम आज डिस्कस करेंगे. अब हम जाते हैं ओवरव्यू पे. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे? वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज हरासमेंट. सो द मीनिंग ऑफ हरासमेंट का मतलब क्या होता है? Now, workplace harassment means that कोई भी इस तरह का unwelcoming या verbal physical conduct, so physical verbal या फिर जो है verbal conduct की वजह से आपको इतना ज्यादा कोई मतलब क्या है? What is workplace harassment? Harassment means that any unwelcome physical, visual and verbal conduct. Now what does this mean? कोई भी इस तरह का अनवेलकमिंग आपको विजुअल, फिजिकल या फिर आपको वर्बल जो है रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स दे ऑफिस के अंदर, ठीक है, उसमें सेक्सुअल फेवर्स हो गए उसके, और वो इतना ज्यादा सेक्सुअल नेचर का हो या फिर वो किसी डिफरेंट तरीके का हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बुलिंग वगैरह, जिससे आपका काम इंटरफेयर हो, सो आपका परफॉर्मेंस अंडरमाइन हो, इट कॉजेज इंटरफेरेंस टू योर वर्क एंड इट क्रिएट्स अ होस्टाइल वर्क एनवायरमेंट. All this comes in the definition of workplace harassment. So workplace harassment क्या होती है? Any unwelcoming physical, visual or written conduct that causes of a sexual nature that causes interference in your work, day to work, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस खराब होता है, आप साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट होते हैं. ये सारी चीजें जो है वो हरासमेंट की डेफिनेशन में आ जाती हैं. आपको इंटिमिडेट करे, आपको ब्लैकमेल करे, आपको थ्रेटन करे, ये सारी चीजें वर्कप्लेस हरासमेंट के डोमेन में आ जाती है. नाउ व्हाट इज अ रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड? लॉ में अगर लॉयर सुन रहे होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि ये तो हमने बहुत पढ़ा है हर जगह. रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड क्या होता है? देखिए, when we consider workplace harassment, so there are two things that we need to look into. What is the definition of workplace harassment, जो मैंने आपको अभी बताई. Number two, whether it is justifiable or not. देखिए, justifiable का मतलब ये है कि if somebody is sending you text at workplace, या फिर वो आपको इस पे चैट भेज रहा है आपके ऑफिशियल ईमेल वगैरह पे, so रिपीटेडली भेज रहा है और वो बोल रहा है कि लेट्स गो आउट ऑन अ डेट और मीट मी फॉर अ सिगरेट ब्रेक, आपको इंसिस्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है, रिपीटेडली भेज रहा है. सो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही होगा कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, वो उसकी फ्रेंड भी नहीं है, कॉलीग, और उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. सो ये जस्टिफाइबल नहीं है, ये रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड में आता है और ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है सोशली. सो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज
हरासमेंट, इट वुड लीड टू हरासमेंट। हाँ, अगर कोई आपका फ्रेंड है और वो आपको ये बात करता है कि लेट्स गो आउट फॉर लंच ड्यूरिंग ऑफिस ब्रेक एंड यू ऑल हैव बीन हैंगिंग आउट, सो दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज हरासमेंट। सो वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट हरासमेंट कब इनिशिएट होती है, वो कब ट्रिगर होती है। इसमें एक बात आप हमेशा याद रखें कि रिपीटेड जो है वो आपको कोई कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहा है एक चीज जो बार बार आपको तंग कर रही है, दैट इज हरासमेंट, दैट एक्चुअली कुड लीड टू हरासमेंट। सो आपको रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड के बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वर्कप्लेस हरासमेंट। नाउ टाइप्स क्या होती है, आप लोग समझते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट इज हरासमेंट एट वर्कप्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट है कि किसी ने आपको टच कर लिया, किसी ने आपको कोई गंदी सेक्सुअल फेवर्स के लिए रिक्वेस्ट कर ली, दैट इज ट्रू, इट्स हरासमेंट, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हरासमेंट एंड 8 तो मेरे सामने ही है जिसमें मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट अगेन एज आई टोल्ड यू कि 4 डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। विजुअल हो गई, फिजिकल हो गई, रिटन हो गई और आपकी जो है ये हो गई वर्बल हो गई। सो वर्बल, रिटन, फिजिकल एंड विजुअल। नाउ इसमें मैं आपको सेक्सुअल हरासमेंट एग्जांपल दे देती हूँ कि वर्बल किस तरह की होती है। वर्बल में कोई आपको डेरोगेटरी कमेंट्स पास करे, रेशियल और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कमेंट्स हो, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स हो गई, सेक्सुअल इन्नुएंडोज हो गए, यू नो बिटवीन द लाइंस कि कोई आपको इस तरह के जोक्स क्रैक करे, दैट ऑल्सो लीड्स टू हरासमेंट। एंड ऑफेंसिव जोक्स और स्टोरीज, रिपीटेड प्रोपोजिशनिंग रिपीटेडली आपको कोई इस तरह की बात करे, ऑफर्स करे, फेवर्स के लिए बात करे, तो दैट इज वर्बल। विजुअल में क्या आ जाता है, विजुअल में देखना। सो कोई आपको कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रहा है कॉन्स्टेंटली ऑफिस के अंदर, that leads to harassment. So you know I have faced these things a lot in my workplace and I feel कि हमारे people in our country they do not really know how to conduct themselves. I feel that a lot of people, when I would not name the organization, but sitting next to me or sitting opposite to me, they are constantly staring. I don't know why. Maybe they're just staring because they're bored, but it actually does affect you and you start thinking what's wrong with me, why that person is staring. देखिए स्ट्रीट्स में तो ये चीजें नॉर्मल है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई आपको ऑफिस के एनवायरनमेंट में बैठ के आपके क्यूबिकल में या करीब में आपको बैठ के कॉन्स्टेंटली देख रहा है ऊपर से नीचे तक, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो यू रियली नीड टू माइंड योर स्पेस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगली की स्पेस होती है, उस पर इस तरह की हरकतें नहीं करते. सो विजुअल में आपको कोई ऑफेंसिव पिक्चर्स भेजे, फोटोज दिखाए, कार्टून्स, पोस्टर्स लगा दे आपके अपने डेस्कटॉप पे, या फिर कोई स्क्रीन सेवर इस तरह का हो, मैगजीन्स और ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाए, या स्टेयर करे जैसे मैंने आपको कहा, डेरोगेटरी और सजेस्टिव जेस्चर्स हो, थ्रोइंग किसेस हो गई, वो सारी विजुअल में आ जाती हैं. शनिंग और ऑस्ट्रेसाइजिंग, सो दीज आर ऑल इन पार्ट ऑफ विजुअल. नाउ रिटन में आ जाते हैं कि रिटन हरासमेंट का क्या एग्जांपल होती है. रिटन इज अनवेलकमिंग पर्सनल लेटर्स. कोई आपको पर्सनल लेटर्स भेज रहा है ईमेल के थ्रू, या नोट्स जो है फेंक रहा है या दे रहा है जिसपे ऐसी चीज लिखी हुई है जो आप तंग हो रहे हो. मेरे साथ ये हो चुका है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं. आई एम श्योर एवरी वुमन हैज फेस्ड, यू नो, मैन और वुमेन, बट आई बीइंग अ फीमेल आई वुड यू नो से कि मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुए, एक स्टेयरिंग का मैंने आपको बताया, दूसरा एक ट्रेनिंग पे हम लोग गए हुए थे और वहां पे मेरा कॉलीग है, ठीक है, वी यूज्ड टू टॉक एंड ऑल, बट कॉलीग ट्रेनिंग सेशन में वो पीछे बैठ के कॉन्स्टेंटली मुझे मैसेजेस कर रहा है कि कम सिट विद मी, कम सिट विद मी. सो व्हाट डज दैट मीन? आई एम गेटिंग इरिटेटेड, आई एम देयर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, ही इज नॉट माई फ्रेंड. सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? दैट पर्सन इज एक्चुअली हरासिंग यू. उसने 6 मुझे मैसेज, वो कोई 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और वो 6 मैसेजेस मुझे उसके हर रोज के दिन में आए. मैंने आखिर उसको मैसेज रिप्लाई बैक किया कि दिस इज डॉक्यूमेंटेड, मैंने ये डॉक्यूमेंट कर लिया है, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट हरासमेंट क्लेम अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर हरासिंग मी. आई डू नॉट वांट टू कम एंड सिट विद यू, डिस्टर्बिंग मी. एंड यू नो ये इस तरह की चीजें बहुत कॉमन होती हैं.
अच्छा, फिजिकल हरासमेंट में एज यू नो कि किसिंग हो गई, पैटिंग हो गई, स्ट्रोकिंग हो गई, या फिर आपको स्टैंडिंग टू क्लोज। तो कोई अगर आपके बहुत क्लोज, अब फिजिकल में आप आ जाते हैं कि अनवेलकमिंग टचिंग, टचिंग हो गई, हगिंग हो गई, बैटिंग हो गई, स्टैंडिंग टू क्लोज, और आपकी स्ट्रोकिंग हो गई, ये सारे फिजिकल में आ जाते हैं। सो हमने 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट पढ़े, जो कि विजुअल, verbal, written and physical. These are 4 different kinds of harassment. ये इसका visual का unfortunately visual verb जो आपका होता है verbal का रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल होता है. It's very difficult to prove verbal harassment because the thing is कि किसी ने आपको अगर किस थ्रो की, so what does that mean? अब now you will not be able to prove it. Evidence उसको रिकॉर्ड करना until से कि आपने उसी वक्त उसकी वीडियो बना दी, which is obviously not practically possible because you don't know whether that person is going to throw kisses at you or not. So it is a bit difficult. लेकिन मेरा पर्सनल advice होगी to all of you watching कि if somebody is doing these kinds of things to you, email, text, verbal कर रहे, बेशक वो कोई posters, calendars दिखा रहा है, एविडेंस को, मेमोरी को, एविडेंशियल मेमोरी को बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, यू मस्ट ऑलवेज जो है आप किसी गो एंड डिस्कस इट विद समवन सो दैट दैट पर्सन इज अ विटनेस. वो आपका विटनेस हो गया, आपने इमीडिएटली इंसिडेंट के बाद उसे डिस्कस कर लिया. नंबर 2, राइट इट डाउन समवेयर इन योर डायरी, इन योर पर्सनल डायरी. बेशक आप उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि whether it was harassment or not, whether you should go and complain or not, but write it down. That will really have make a difference. वो एक evidence रह जाएगा. हमने types of workplace harassment 8 different kinds किए. हमने sexual harassment पढ़ी. दूसरी harassment है जो कि एक्चुअली बहुत कॉमन है लेकिन हमें समझ नहीं आती. उसका है नाम quid pro quo. So quid pro quo term is a Latin term that means this for that. So this quid pro quo. Quid pro quo, this for that. Now इसका क्या मतलब होता है? ऑफिस के अंदर कोई आपका बॉस, सुपरवाइजर या आपका कोई सीनियर कॉलीग या फिर जो आपके पोजीशन ऑफ पावर में हो, वो आपको कहे कि मैं आई विल प्रमोट यू, आई विल गिव यू बेटर असाइनमेंट, आई विल गिव यू अ रेज, और आई विल ट्रांसफर यू टू योर द प्लेस यू ऑलवेज वांटेड टू गो, या मैं आपको कोई किस तरह का फेवर करूंगा, गो आउट ऑन अ डेट विद मी, या फिर इन एक्सचेंज कोई सेक्सुअल फेवर्स वो आपसे मांगे. ये क्विड प्रो को होता है. बेशक वो कहे कि ऑफिस के बाहर मुझसे मिल लो, दिस इज क्विड प्रो को एंड इट्स वेरी कॉमन इन एक्सचेंज फॉर समथिंग. सो ये भी वर्कप्लेस हरासमेंट में कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है. उसके बाद आपका आ जाता है होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट. होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट का मतलब ये है किसी भी तरह की हॉस्टिलिटी, any sort of hostility that somebody is trying to create at your workplace. So hostile would occur when verbal or non-verbal behavior in the workplace focuses on your sexuality, that oh, you're a female, you can't do that, oh, you're a female, you can't run the house. I have always been said these things. मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्यों बता रही हूँ? बिकॉज यू नो यू मस्ट टेक एन एक्शन अगेंस्ट दीज थिंग्स. there was an incident जब मेरी one of my companies में there were massive layoffs जिसपे a lot of people were getting terminated, जो कि mostly companies में होता है. And I was told by so many senior members, senior male colleagues, senior as in position wise भी and age wise भी, कि you are a kid, you know, and or you are or you don't have kids, or your husband supports you, or your father supports you, you don't need to run the house. So it's really, you should have been fired, you know. It's that is also harassment. So hostility, आपको वो चीज तंग करे कि why, you know, I'm working so hard, what does that even mean? Hostile work environment में unwanted, unwelcome or so severe or pervasive enough to affect your work environment. Now let me give you examples. Example of workplace hostile work environment. Example of hostile work environment. Number 1, degrading comments.
आपको कोई डिग्रेड कमेंट्स, ये जैसे मैंने आपको बताया डिग्रेडिंग कमेंट्स है, आपकी वैल्यू, आपकी क्रेडिबिलिटी को आपके वर्क प्लेस पर अंडरमाइन किया जाए। नंबर 2 सेक्सुअल प्रोपोजिशंस। नंबर 3 सेक्सुअल प्रोपोजिशंस जिसे हमने डिस्कस किया। नंबर 3 वल्गर लैंग्वेज। अनफॉर्चुनेटली दिस हैपेंस अ लॉट। वल्गर लैंग्वेज आपका बॉस भी आपके साथ यूज कर सकता है। रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। नाउ वन ऑफ माई बॉस एक्चुअली in one of the companies actually said that he was a perfectly okay man and I've never faced harassment from him, but in a subtle way or a sexual innuendo ही आप कह दो कि he did ask me about or discussed with me, probably it was very normal with him but it was not for me, that you know where do you go and buy your undergarments from? So what does that mean? I mean, go and discuss it with someone so that that person is a witness. वो आपका witness हो गया, आपने immediately incident के बाद उसे discuss कर लिया. Number 2, write it down somewhere in your diary, in your personal diary. बेशक आप उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि whether it was harassment or not, whether you should go and complain or not, but write it down. That will really make a difference. वो एक evidence रह जाएगा. हमने टाइप्स ऑफ वर्कप्लेस हरासमेंट 8 डिफरेंट काइंड्स किए. हमने सेक्सुअल हरासमेंट पढ़ी. दूसरी हरासमेंट है जो कि एक्चुअली बहुत कॉमन है लेकिन हमें समझ नहीं आती. उसका है नाम क्विड प्रो को. सो क्विड प्रो को टर्म इज अ लैटिन टर्म दैट मीन्स दिस फॉर दैट. सो दिस क्विड प्रो को, क्विड प्रो को, दिस फॉर दैट. नाउ इसका क्या मतलब होता है? ऑफिस के अंदर कोई आपका बॉस, सुपरवाइजर या आपका कोई सीनियर कॉलीग या फिर जो आपके पोजीशन ऑफ पावर में हो, वो आपको कहे कि मैं आई विल प्रमोट यू, आई विल गिव यू बेटर असाइनमेंट, आई विल गिव यू अ रेज और आई विल ट्रांसफर यू टू योर द प्लेस यू ऑलवेज वांटेड टू गो, या मैं आपको कोई किस तरह का फेवर करूंगा, गो आउट ऑन अ डेट विद मी, या फिर इन एक्सचेंज कोई सेक्सुअल फेवर्स वो आपसे मांगे. ये क्विड प्रो को होता है. बेशक वो कहे कि ऑफिस के बाहर मुझसे मिल लो. दिस इज क्विड प्रो को एंड इट्स वेरी कॉमन इन एक्सचेंज फॉर समथिंग. सो ये भी वर्कप्लेस हरासमेंट में कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है. उसके बाद आपका आ जाता है होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट. होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब ये है किसी भी तरह की hostility, any sort of hostility that somebody is trying to create at your workplace. So hostile would occur when verbal or non-verbal behavior in the workplace focuses on your sexuality, that oh you're a female, you can't do that, oh you're a female, you can't run the house. I have always been said these things. मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्यों बता रही हूँ? बिकॉज यू नो यू मस्ट टेक एन एक्शन अगेंस्ट दीज थिंग्स. there was an incident जब मेरी one of my companies में there were massive layoffs जिसपे a lot of people were getting terminated, जो कि mostly companies में होता है. And I was told by so many senior members, senior male colleagues, senior as in position wise भी and age wise भी, कि you are a kid, you know, and or you are or you don't have kids, or your husband supports you, or your father supports you, you don't need to run the house. So it's really, you should have been fired. You know, it's that is also harassment. So hostility, आपको वो चीज तंग करे कि why, you know, I'm working so hard. What does that even mean? Hostile work environment में unwanted, unwelcome or so severe or pervasive enough to affect your work environment. Now let me give you examples. Example of workplace hostile work environment. Example of hostile work environment. Number 1, degrading comments. आपको कोई डिग्रेड कमेंट्स, ये जैसे मैंने आपको बताया डिग्रेडिंग कमेंट्स है, आपकी वैल्यू, आपकी क्रेडिबिलिटी को आपके वर्क प्लेस पर अंडरमाइन किया जाए. नंबर 2 सेक्सुअल प्रोपोजिशंस. नंबर 3 सेक्सुअल प्रोपोजिशंस जिसे हमने डिस्कस किया. नंबर 3 वल्गर लैंग्वेज. सो वल्गर लैंग्वेज हो गई, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स हो गए जैसे हमने डिस्कस किया, ग्राफिक सेक्सुअल कमेंट्स हो गए.
सेक्सुअल पोस्टर्स, कार्टून्स, स्क्रीन सेवर्स पे किसी ने लगा दिया, स्वेरिंग, आपके ऊपर आपका बॉस गालियां दे रहा है, दैट इज ऑल्सो हरासमेंट। ये हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट में आ जाता है गालियां देना। सेक्सुअल जोक्स हो गए, बुली करना, बुली करके कोई कंप्लेन करने जाता है, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है, वो बॉसेस और लोग उसको घेर के कहते हो तो यू आर सो पैरानॉइड, यू आर सो वीक, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लाउड और थ्रेटनिंग बिहेवियर, थ्रेट्स, इंटिमिडेशन, कोई आपको इतना इंटिमिडेट करे कि आपकी परफॉर्मेंस का आपको डर लगे कि यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। आई रिमेम्बर हमारे स्कूल के जमाने में हमारी टीचर्स इतनी इंटिमिडेटिंग होती थी। आई विश कि उस वक्त इतनी अवेयरनेस होती कि जो है स्टूडेंट या एक छोटे चाइल्ड को साइकोलॉजिकली डैमेज करने वाली चीज होगी, लेकिन ऑफिस में भी ये होता है। सेक्सुअल टचिंग हो गई, ये एग्जाम्पल्स हैं हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट के, कि आपको कोई आके शोल्डर पे हाथ रख के बात कर रहा है। No, that is not acceptable at a workplace. Embarrassing questions पूछे या sexual advances ले. So these things are not acceptable. Now we come to the next point, bullying in the workplace. Bullying is actually harassment that leads to harassment. Age पे एज पे आपका कोई मजाक उड़ा, तुम बहुत छोटी हो, छोटे हो, या तुम बहुत बड़ी हो या बड़े हो फॉर दिस पोजीशन, या रेशियल कमेंट्स हैं कि तुम यू आर फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ डिफरेंट रेस और कल्चर। हमारे पास ये कम होता है, आई बिलीव कराची में इट्स वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इट्स वेरी डाइवर्स, वहां पे देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, सो यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स, मेकिंग जोक्स ऑन एज, योर रेशियल एंड रिलीजियस। मजहब के ऊपर कोई आपको आके बोलता है कि तुम नमाज आ रही है, नमाज पढ़ो या दुपट्टा सर पे लो, या फिर जो है नमाज पे तुम्हें जाना बहुत जरूरी है, और परसिस्टेंटली बोले, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एज हरासमेंट। एंड देन देयर इज डिसेबिलिटी, आपकी डिसेबिलिटी पे कोई मजाक उड़ाए, दैट इज ऑल्सो हरासमेंट। नाउ $1 million क्वेश्चन, हु कैन कमिट हरासमेंट? ना हरासमेंट वर्क प्लेस पे कोई भी कमिट कर सकता है। हरासमेंट सुपरवाइजर भी कमिट कर सकता है, आपका सबऑर्डिनेट भी कमिट कर सकता है, आपका कॉलीग भी कर सकता है, आपका सेम जेंडर सेम सेक्स का पर्सन भी कर सकता है, लड़की लड़की को, लड़का लड़की को बुली हो गया या किसी भी तरह की कोई चीज, वो भी जो है वो कर सकता है। और आपका कोई क्लाइंट, नाउ कोवर्कर तो है ही है, क्लाइंट और कस्टमर, आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट या कस्टमर आया थर्ड पार्टी, वो आपको हरास करता है, तो उसके क्लेम किधर जाएगा? उसका क्लेम उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, तो थर्ड पार्टी क्लेम होगा। थर्ड पार्टी है लाइक क्लाइंट कस्टमर, उसका क्लेम आपको, हरासर जो थर्ड पार्टी है वो लायबल होगी, एंड ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन विल बी लायबल। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट दैट हु इज गोइंग टू बी लायबल फॉर दिस। हरासर इज लायबल एंड एम्प्लॉयर इज लायबल। जो जिसने आपको हरास किया वो तो लायबल है ही है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर मतलब के जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वो भी लायबल होंगे। अच्छा, एक मेरे पास एक कार्टून मेरे सामने, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें कार्टून जो कैरेक्टर है वो मेल कहता है अपनी सेक्रेटरी को, बॉस है, वो कहता है, आई नो यू डोंट डेट गाइज फ्रॉम वर्क, सो आई कुड फायर यू फ्राइडे आफ्टरनून एंड हायर यू बैक ऑन मंडे मॉर्निंग। ये उसने कहा उसको सो दैट कि मैं जो हूँ, तुम मेरे साथ वीकेंड पे चलो, मैं तुम्हें फ्राइडे को, इट्स अ जोक एंड इट्स अगर किसी को समझ आया तो इसमें सब यही मतलब निकल रहा है कि फ्राइडे को मैं तुम्हें फायर कर देता हूँ ताकि वीकेंड पे तुम मेरे साथ डेट पे जाओ, और फिर मंडे को आई विल हायर यू बैक, सो दैट मैं तुम्हें आस्क आउट करता रहूं और तुम मेरे अगेंस्ट कोई हरासमेंट कंप्लेन और ना फाइल करो। सो ये चीजें देखिए, दीज आर ऑल रॉन्ग। नाउ मेरे साथ ये इंसिडेंट हुए, सबके साथ हुए, बहुत सारे लोगों के साथ होते। क्या वजह है कि वो कंप्लेन नहीं करते? सबसे बड़ी वजह, फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब। हमें हमेशा ये डर रहता है कि वी विल लूज आवर जॉब। नाउ दैट्स ट्रू, ये डर है, और इनको हम आगे आगे चलते हैं कि किस तरह इन डर को खत्म करना है। फेयर ऑफ रिटेलिएशन का मतलब ये है कि अगर मैंने अपने बॉस के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की, तो वो हो सकता है कि वो मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ले, मुझे टॉर्चर करे, मुझे बहुत ज्यादा काम दे, मुझे डिमोट कर दे, या फिर उसको एक गलत तरीके से मुझे फायर कर दे मे बी। सो फेयर ऑफ गेटिंग समवन इनटू ट्रबल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। फेयर ऑफ डिस्टर्बिंग द वर्क प्लेस, fear of being embarrassed,
कि कहीं मेरी डिस्क्लोज हो गई ये अजीब सी बात तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि ये तो प्रॉब्लम मेकर है, ओ ये हरासमेंट हुई, इफ इट्स अ फीमेल देन इट्स ऑलवेज द फीमेल्स फॉल्ट. सो यू नो ये हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली है कि इफ वुमेन इज बीइंग हरास्ड और ये बात निकल जाती है और उसका कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता, it is always the female's fault. So this is a very normal phenomena in our country. Fear of not being believed, ये भी होता है, या आदमी हो या औरत हो, so ये भी होता है कि they are not believed and that's a fear, that's one of your fear कि यार मेरी बात कही गई बात जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो बिलीव ही नहीं करेगा. This is why 90% of workplace harassment is never officially reported. नाउ आई विल गिव यू रिटेलिएशन एग्जाम्पल्स. जैसे मैंने आपको कहा कि फियर ऑफ रिटेलिएशन है आपका बॉस सुपरवाइजर ही रिटेलिएट कर सकता है या कभी कभी को वर्कर भी कर सकता है. अनवांटेड अनडिजर्व लोअर परफॉर्मेंस रिव्यूज, वेरी नॉर्मल और हुआ है मेरे सामने, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है. ट्रांसफर्स, ड्यूटीज चेंजेस, टेकिंग अवे और डिनाइंग प्रिविलेजेस, आपको गाड़ी दी हुई, फ्यूल दिया हुआ, वो सब ले लिया गया. डिसिप्लिनरी चार्जेस, आपके ऊपर उल्टा आपके ऊपर डिसिप्लिनरी चार्जेस लगा दिए गए हों, ये भी होता है. रिडिक्यूल किया जाए आपको, ब्लेमिंग फॉर वर्क प्रॉब्लम्स, कंटिन्यू एस्केलेटिंग द प्रोहिबिटेड कॉन्डक्ट, थ्रेट्स and then exclusion in a way that creates an intimidating stressful environment for you. So you know these are the examples of how your supervisor can retaliate against you. Now harassment can cost you. We need to really stop workplace harassment. It can cost us. Why and how it can cost us? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, आपका काम करने का दिल नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी लॉयल्टी खत्म हो जाती है. आप कहते हो व्हाई एम आई वर्किंग सो हार्ड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई एम बीइंग हरास्ड एट दैट प्लेस जहाँ पे मेरी कोई सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है. आप ज्यादा एब्सेंट होने लग जाते हो, टर्नओवर रेट बढ़ जाता है, रिड्यूस लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज लीगल कॉस्ट. सो यू नो आपकी अगर आप कोई लॉयर वगैरह ओपिनियन के लिए हायर करना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है. ऑल्दो you should not hire a lawyer. I'll tell you why. अगर आपको harassment हुई है तो आपने क्या करना है. Anger, humiliation. Anger is not good for health. Medically it is not good for health. Humiliate कोई आपको करे. Loss of work, time बहुत ज्यादा होता है. Disturb. जब मुझे कहा गया कि तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, I wish you were fired. You know these were the words the senior people who were senior to me, age wise and position wise told me that. So you know it does affect you. और मैं आधा दिन तो मेरा खराब ही गुजरा था. And I was discussing with my other female colleagues that what is wrong with these people. And then there is loss of job. So you know you eventually want to leave that place. So these are the things that actually क्या कहते हैं cost you. So do not take it lightly. It's a very serious problem. अब आपके पास हो गई हरासमेंट. नाउ हरासमेंट तो हुई, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली. इसके क्या तरीके हैं कि हाउ टू एक्चुअली कंप्लेन इट. ना कंप्लेन करने का तरीका हमारे कानून में 3 तरीके दिए हैं. 3 तरीके क्या हैं? नंबर 1 आपकी सबसे पहले आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल. सबसे पहले हम आ जाते हैं कि फर्स्ट लॉ जो कहता है कि अगर आपके साथ हरासमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में हुई हो, सो लॉ ने, कानून ने हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2010 का एक एक्ट आया. वो 2010 का एक्ट कहता है कि फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट इज मैंडेटरी टू अप्लाई दिस लॉ. ठीक है, वो उसको अप्लाई करे और वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, चैरिटेबल, कॉलेजेस, स्कूल्स, को किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन को उसको ये अपनाना लाजिम है. ठीक है, इस लॉ के तहत लाजिम अपनाने का क्या मतलब है कि कोड ऑफ एथिक्स एक पॉलिसी बनाई जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उस पॉलिसी को आप जो हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लोट करें, मेक इट मोर प्रोमिनेंट, पुट इट इफ देयर फैक्ट्रीज, पुट इट ऑन बैनर्स,
displayed on a sign which is readable for everyone. For example, उर्दू अगर फैक्ट्री में या फिर अगर सिंधी में है, आप इंटीरियर में हो, तो वो ये सारी लैंग्वेज में आप उसको डिस्प्ले करें. इंग्लिश में हेड ऑफिस में जहाँ फॉरेनर्स हैं या लोगों को उर्दू नहीं पढ़ने आती. और इसके अलावा अच्छा मजे की बात यह है कि इसका नाम प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एट 2010 एक्ट है. ठीक है, वुमेन का वर्ड आ रहा है, वुमेन का, आई थिंक ये पढ़ा नहीं जा रहा वुमेन. इसका मतलब है कि ये मतलब नहीं है कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ औरतों पे, ये दोनों पर एप्लीकेबल है. दिस हैज बीन अ कंफ्यूजन एंड प्रोबेबली दिस हैज बीन अ एरर कि ये दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ मेल एंड फीमेल, सो बोथ कैन यूज दिस एक्ट. नाउ सेक्शन 2H इसका यही कहता है जो हमने डिस्कस किया था कि एनी अनवेलकमिंग सेक्सुअल एडवांस रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स और अदर वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन और फिजिकल कॉन्डक्ट, ये एग्जैक्ट वही बात करता है कि जो है जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो इतना ज्यादा अनवेलकमिंग फिजिकल वर्बल और विजुअल कॉन्डक्ट हो दैट आस्क फॉर सेक्सुअल फेवर्स, जिसकी वजह से योर वर्क गेट्स अंडरमाइंड, परफॉर्मेंस गेट अफेक्टेड एंड जिसकी वजह से हॉस्टिलिटी एक वर्क एनवायरनमेंट में क्रिएट हो. सो दैट इज बेसिकली डेफिनेशन. नाउ अगर आपके साथ हरासमेंट हुई, आप क्या करें? आप सबसे पहले इस लॉ के तहत जो अभी हमने 2010 डिस्कस किया, उसके तहत यू हैव every organization have to make a committee of 3 people. उस कमेटी का नाम होगा इंक्वायरी कमेटी. नाउ इंक्वायरी कमेटी में 3 लोग होंगे, 1 फीमेल होगी मैंडेटरी, 1 सीनियर मैनेजमेंट का बंदा होगा और 1 आपका कोई और वर्कर होगा ऑफिस का, या फिर अगर यूनियन है तो यूनियन का कोई बंदा होगा. नाउ इसके अंदर आप सबसे पहले अगर इंक्वायरी कमेटी आपके ऑफिस में बनी हुई है, ठीक है, तो यू कैन गो एंड इन्फॉर्म एनी वन ऑफ दीज पीपल, इन तीनों में से किसी एक मेंबर को कि प्लीज जो है मेरे साथ ये हुआ है और आप इसको देखें. अच्छा, अब वो जब कंप्लेन आप उनके साथ करते हो, रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, तो वो जाके उसको वो कंप्लेन, अच्छा रिटन भी हो सकती है, और रिटन अगर होगी तो द इंक्वायरी कमेटी मेंबर विल साइन इट, ठीक है, और उस पर डेट लिखेंगे. उस दिन से लेके 30 दिन तक का टाइम होता है इंक्वायरी कमेटी को कि वो जो है एक डिसीजन ले. जब ये कंप्लेन जाती है, अच्छा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एक पोर्टल होते हैं, बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस में पोर्टल होते हैं जिसके अंदर anonymous complaint भी you can file. So if you file anonymous complaint, females are mostly very comfortable, or males as well, for the threat के retaliation ना हो या कुछ, तो वो anonymous complaint file कर सकते हैं. Now anonymous complaint में आपका नाम नहीं जाएगा, उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह इंक्वायरी कमेटी एक्शन लेगी लेकिन नाम नहीं जाएगा. अब इंक्वायरी कमेटी के पास आ गया आपकी कंप्लेंट, उन्होंने साइन करके डेट लिख दी, उस डेट से लेके 30 दिन तक का टाइम है इंक्वायरी कमेटी को डिसीजन लेने के लिए. अच्छा, जैसे ही इंक्वायरी कमेटी के पास रिपोर्ट जाएगी, कंप्लेंट जाएगी, इंक्वायरी कमेटी 3 दिन के अंदर वो कंप्लेंट जो है आपके हरासर को, अदर पार्टी को भेजेगी. 3 दिन के अंदर भेजेगी. 7 दिन का टाइम है कि जो वो दूसरी पार्टी का हरासर है वो 7 दिन के अंदर अपना जवाब दे, और जब वो अपना जवाब देगा उसके बाद एक प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी. ये इंक्वायरी कमेटी ऑफिस के अंदर ही सारा कुछ होता है, और प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी जिसके अंदर एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होंगी एंड फिर एक डिसीजन 30 दिन के अंदर लिया जाएगा. और अगर आप इस डिसीजन से हैप्पी नहीं है तो क्या होगा? अगर इफ यू नॉट हैप्पी विद द डिसीजन देन यू कैन फाइल एन अपील. वेयर विल द अपील गो? नाउ इंक्वायरी कमेटी ने डिसीजन लिया, नेचुरली आपके दिमाग में आएगा अपील किधर जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ जाएगी? अपील जाएगी आपकी ऑम्बुड्समैन. नाउ व्हाट इज ऑम्बुड्समैन? ऑम्बुड्समैन क्या होता है? ऑम्बुड्समैन हर पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस में एक जरूर बना हुआ है जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को सुनता है. नाउ कंप्लेनेंट विक्टिम ऑफ हरासमेंट हैज 2 ways. या वो डायरेक्टली अपने इंक्वायरी कमेटी पे जाए
ऑफिस में डायरेक्ट, या वो ऑम्बड्समैन के पास जाए। या डायरेक्टली ऑम्बड्समैन के पास जाए, इंक्वायरी कमेटी के पास जाके कंप्लेन करे। बेहतर ये होता है कि इंक्वायरी कमेटी के पास जाए, वो आपके ऑफिस की होती है और मामला उधर ही बंद हो जाता है। ऑम्बड्समैन में थोड़ा सा डिफिकल्टी, खुद जाना, आपने लॉयर हायर करना, वो सारी चीजें होती हैं। अगर आप इंक्वायरी कमेटी के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप ऑम्बड्समैन चले जाओ। ऑम्बड्समैन में के पास 30 दिन होते हैं कि वो जो है, उनके पास पावर्स होते हैं कि टू सेट असाइड, वो डिसीजन सुनेंगे और जस्ट मिनट, ऑम्बड्समैन के पास पावर होता है सेट असाइड, वेरी और मॉडिफाई द डिसीजन विद इन 30 डेज का टाइम होता है। और वो फिर उसके बाद दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट कर देती है। वो दोनों पार्टीज होती हैं आपकी एम्प्लॉय, जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन बोथ। सो वो डिसीजन। अच्छा, अब ये रोल ऑफ ऑम्बड्समैन का क्या होता है? टू रिसीव डायरेक्ट कंप्लेंट्स फ्रॉम द कंप्लेनेंट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, टू हेयर अपील्स। नंबर 3, कोई भी एम्प्लॉय के पास राइट है कि वो डायरेक्ट ऑम्बड्समैन के पास जा सकता है। नंबर 4, वो समन कर सकती हैं एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द बोथ द पार्टीज। समनिंग जैसे कोर्ट के पास पावर्स होता है। वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन कोई किसी घर में जाके कोई एंटर करके प्रीमिसेस में, उन ऑम्बड्समैन के पास ऑम्बड्समैन के पास वो सारे सेम पावर्स होते हैं जो कि एक हाई कोर्ट के पास होते हैं। इट कैन गो एंड एंटर इनटू प्रीमिसेस एंड इट कैन लुक फॉर एविडेंसेस, देन इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हो गया। ऑम्बड्समैन शैल आल्सो हैव, ऑम्बड्समैन while making the decision on the complaint may impose any of the minor or major penalties। minor major penalties क्या है? जब इंक्वायरी कमेटी डिसीजन लेगी तो इंक्वायरी कमेटी के पास राइट है अंडर द हरासमेंट एक्ट 2010 कि वो 2 तरह की डिसीजन पोज कर सकती है, मेजर हो गई या माइनर। मेजर पेनल्टीज में क्या आ जाता है आपकी? पहले हम माइनर पेनल्टीज डिस्कस। माइनर पेनल्टीज में आपका सस्पेंशन आ गई, पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया, रिकवरी ऑफ कॉम्पनसेशन आ गई कि आपको कहा कि जी इसको सॉरी बोले या पैसे दें, वार्निंग आ गई और पे डिडक्शन आ गई। मेजर पेनल्टीज में आपको फायर कर दिया जाएगा या फिर आपको कहा जाएगा कंपलसरी रिटायरमेंट। ना टर्मिनेशन, फायरिंग और कंपलसरी रिटायरमेंट दोनों में क्या फर्क है? फायरिंग में होता है कि आपको लेटर दिया जाए और कहा कि ये यू हैव फायर्ड, और कंपलसरी रिटायरमेंट में आपको मैनेजमेंट बुला के कहती है आपका सुपरवाइजर कि यू शुड रिजाइन टुमारो बिकॉज वी डोंट वांट यू एनी मोर। अगर आपने रिजाइन नहीं किया, फोर्सफुल रेजिग्नेशन, तो हम आपको फायर कर देंगे, जो कि ऑब्वियसली यू विल नॉट नेवर गेट अ रेफरेंस लेटर फ्रॉम द कंपनी, सो इट विल एक्चुअली अफेक्ट योर सीवी। फाइन हो गया इसके अंदर मेजर पेनल्टीज में, डिमोशन टू अ लोअर पोस्ट हो गया, और आपका कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, या फिर आपका रिमूवल फ्रॉम द सर्विस हो गया। सो ये चीजें मेजर पेनल्टीज। नाउ रिमेंबर कि डू नॉट फॉरगेट टू डॉक्यूमेंट योर हरासमेंट एनी सॉर्ट। डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, और अगर आप इंक्वायरी कमेटी को बताते भी हैं तो प्लीज लिख कर दें आप। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम है ना। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये लाजिम है कि वो एक पॉलिसी बनाए, कोड ऑफ एथिक्स की, उस पॉलिसी को रिटन में बनाए, उसको डिसेमिनेट करें, उसको प्रोमिनेंट करें, उसको डिस्प्ले करें, उसमें प्रोटेक्शन दें कि अगर आपने कंप्लेन की तो रिटेलिएशन होगी, होगी तो रिटेलिएटर के साथ क्या हो सकता है, उसमें वर्क प्लेस हरासमेंट को प्रॉपरली डिफाइन किया जाए, एग्जाम्पल्स के साथ वीडियोस दिखाई जाए। उसके बाद कवर हरासमेंट बाय एनीवन इन द वर्क प्लेस, लाइक सुपरवाइजर, कोवर्कर्स, ये सारी चीजें कवर्ड हों। इनकरेज एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट हरासमेंट, आपको इनकरेज किया जाए ना कि आपको डिस्करेज किया जाए। क्लियरिफाई दैट द एम्प्लॉयर विल स्टॉप हरासमेंट बिफोर इट राइजेस टू द लेवल ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्वायरी कमेटी का बताएं कि कौन इंक्वायरी कमेटी में है, मेंबर्स, उनका रोल क्या है, उनके पास जाया कैसे जाता है, कोई पोर्टल ऑनलाइन है जिसमें अनोनिमस कंप्लेन कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन, 7 दिन, 30 दिन, ये सारा बताएं। Assured that the report of inquiry is created and reviewed promptly by appropriate management, promptly भी हो और उसको रिवाइज भी किया जाए सिचुएशन और साल हर एवरी ईयर मुताबिक।
उसके बाद इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, आप इनको ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, अश्योर दैट द इमीडिएट एंड अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन इंक्लूडिंग डिसिप्लिन विल बी टेकन अगेंस्ट द हरासर। और अगर हरासमेंट झूठी है, हरासमेंट अगर झूठ है, गलत है, किसी ने गलत बयानी की है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। ये भी आपको बहुत जरूरी है, आप अपनी पॉलिसी के अंदर लिखें। अब हम आ जाते हैं कि हरासमेंट अगर आपके साथ हुई है, अब ये वर्क प्लेस से ऊपर की बात हो रही है, दिस इज नॉट वर्क प्लेस रिलेटेड। वर्क प्लेस हरासमेंट के अलावा देखिए, मैंने आपको कहा कि 3 डिफरेंट तरह के एवेन्यूज हैं लॉ में, पाकिस्तानी लॉ में। अगर आपको पता हो, या यूजली लोग लॉयर से भी पूछते हैं, उनको पता नहीं होता कि वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट 2010 नंबर 1, जिसमें वर्क प्लेस हरासमेंट कवर होती है। पाकिस्तान पिनल कोड में हरासमेंट कवर होती है औरतों के अगेंस्ट, वर्क प्लेस नहीं, औरतों के अगेंस्ट, उसमें वर्क प्लेस भी आ जा सकता है। और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में आपकी हरासमेंट कवर होती है। पाकिस्तान पिनल कोड, नाउ पीपीसी क्या आपको रिलीफ देता है? पीपीसी में 3 सेक्शंस हैं, 509, 354, 294, 509। अच्छा, पाकिस्तान पिनल कोड में आपको, बिफोर मैं इन 3 सेक्शंस को बताऊं, पाकिस्तान जाके आपके साथ पाकिस्तान पिनल कोड में के अंडर आपने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में आपने सबसे पहले पुलिस को बताया कि ये हुआ है। पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वही जो आपकी सीआरपीसी का एक प्रोसीजर होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। पुलिस उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगी, चालान फॉर्म में सबमिट करेगी कोर्ट को। तो ये पाकिस्तान पिनल कोड में पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लोग इसको प्रेफर नहीं करते और उनको पता भी नहीं होता। ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान पिनल कोड जरा डिलेज करता है, और वो इतना रेलेवेंट भी नहीं है। तो आपका जो जज है वो हमेशा आपको कहेगा कि आप पहले वर्कप्लेस हरासमेंट में गए थे या नहीं थे। ये वो हरासमेंट जो स्ट्रीट हरासमेंट, एनीथिंग अदर देन वर्कप्लेस हरासमेंट भी हो सकती है, एक्चुअली वही होती है। लेकिन इसमें आपके पास रेमेडी है वर्कप्लेस ओम्बुड्समैन के अलावा, आप इधर जाएं। अच्छा, इसमें सेक्शन 509 क्या कहता है? सेक्शन 509 कोई भी इस तरह का वर्ड, 509 पाकिस्तान पिनल कोड का वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, किसी औरत की मॉडेस्टी पे आपने कोई बात की, उसको गाने अजीब से वल्गर गा रहे हैं, उसको सीटी बजा रहे हैं, उसकी कैरेक्टर के ऊपर, उसकी फेम पे बात करें, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये एक नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट्स नॉट सीरियस इन नेचर, you cannot arrest someone without warrant under this 509, एंड ये नॉन बेलेबल है और ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्लेम किया 509 में, तो वो हरासर जो है वो क्लेम वापस ले सकता है, ठीक है, सॉरी, वो वापस ले सकते हैं कंपाउंडेबल में ये। और पनिशमेंट इसकी 1 साल, जो अप टू 1 ईयर, लॉ में हमेशा अप टू 1 ईयर, और फाइन और बोथ। अच्छा, मैं मजे की बात बताती चलूं कि तीनों 509, 354, 294 आर ऑल एप्लीकेबल टू वुमेन ओनली। अब हम 354 पे आ जाते हैं। 354 में असॉल्ट, और असॉल्ट मतलब कि इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, मतलब कि ये इसमें उसकी मॉडेस्टी को खराब करने के लिए उसको वायलेंटली उसके साथ कुछ आप यूज करो। ये इसके अंदर जो है ये कॉग्निजेबल है, ये एक सीरियस ऑफेंस है, बेलेबल है, ये नॉट कंपाउंडेबल है, इसकी कंप्लेन आप वापस नहीं ले सकते। पनिशमेंट इज 2 ईयर्स और फाइन और बोथ। 294 सेक्शन कहता है असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमन intending to outrage or knowing it likely that he will outrage her modesty, ये एक नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, और इसकी पनिशमेंट 3 मंथ। ये थोड़ा सिवियर है, 3 मंथ्स या फिर फाइन या बोथ, इन दोनों से थोड़ा लेस सिवियर है, इट्स लेस सिवियर। सो असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमन इंटेंडिंग टू, उसकी इंटेंशन है और वो उस पर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, टू आउटरेज और नोइंग इट लाइकली दैट इट विल आउटरेज हर मॉडेस्टी। ये हमने 2 कर लिए आपके वर्कप्लेस हरासमेंट एंड पाकिस्तानी पीनल कोड में हरासमेंट पे क्या क्या रेमेडीज और एवेन्यूज हैं। अब आ जाता है, मैं इस पे लिखूंगी पैका। अब इसको मैं वर्कप्लेस हरासमेंट डिस्कस की, वर्कप्लेस हरासमेंट 2010 एक्ट, पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर क्या हरासमेंट के एवेन्यूज हैं,
अब ये है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। इसमें आप कहेंगे हरासमेंट का क्या ताल्लुक है? हरासमेंट का ये ताल्लुक है कि कोई भी इस तरह की हरासमेंट जो इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन हो, आपके साथ हो रही हो, वो इसके अंदर कवर होती है। इसके भी 3 सेक्शन और प्रोविजंस है। सेक्शन 20, 21, सेक्शन 24, 3 है। ये बात आप याद रखिए, 3 है। अच्छा, अब मैं इन पे लेके चलती हूँ कि क्या 3 ये सेक्शंस कहते हैं। अच्छा, इसमें आपको यू नीड टू रिमेम्बर कि यू डू नॉट नीड टू प्रूव। मजे की बात इसमें यू डू नॉट नीड टू प्रूव कि जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसमें ये आप किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हो। आप अपने ऑफिस वर्कर पे भी कर सकते हो कि अगर आपके साथ कोई ऑफिस में जो कॉलीग है वो इंटरनेट के थ्रू बदतमीजी कर रहा है तो वो इसमें पैका में आ जाता है। पैका में करते क्या है, अगर आपको कोई हरास कर रहा है इंटरनेट ऑनलाइन इंटरनेट मीडियम के थ्रू, उसमें होता क्या, उसमें ये होता है कि आपकी जो प्रॉपर जो फोरम है वर्कप्लेस हरासमेंट 2010 एक्ट में आपका था ऑम्बुड्समैन या इंक्वायरी कमेटी, इसमें आपने जाना है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम सेल FIA साइबर क्राइम के पास जाना है। ऑनलाइन FIA का एक बहुत अच्छा FIA आप लिखेंगे FIA साइबर क्राइम, एक फॉर्म खुल जाता है, उसमें आप सारी एप्लीकेशन भरते हैं और फिर आपको FIA इंस्पेक्टर आपको कॉल करते हैं और वो आपको बुलाते हैं। सो ये बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है साइबर क्राइम का। ये इस पे कंप्लेन जाती है। इसमें आप जरूरी नहीं है कि आपको साबित करना पड़े कि मेरा एम्प्लॉयर रिलेशनशिप थी। सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 कहता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, दोनों पे एप्लीकेबल है, मेल फीमेल पे। डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, कोई भी इंटरनेट पे इस तरह का ऑफेंस जो कि इंसान की शोहरत, फेम, उसको गालियां देना, फेम, शोहरत या उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर बात करना, वो सारा जो है वो डिग्निटी के ऊपर अफेक्ट करेगा। ये नॉट कॉग्निजेबल है, सीरियस इन नेचर नहीं है, ये नॉट पेलेबल है, ये कंपाउंडेबल है, इसकी कंप्लेन आप वापस ले सकते हैं। 3 साल सजा है और 10 लाख जुर्माना है, 1 मिलियन। अब 21 और 20 में बहुत सिमिलैरिटीज है। 21 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। पहले 20 में था ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन और 21 में है ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। मॉडेस्टी का मतलब ये है कि कोई सुपर इम्पोज पिक्चर कर देना। आपने इंटरनेट पे किसी लड़की के साथ मोस्टली होता है कि पिक्चर लगा दी, उसका फेस लगा दिया किसी गलत पिक्चर पे, डर्टी पिक्चर पे, पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे किसी बच्चे का या किसी भी इंसान का वीडियो लगा दी या फेक लगा दी वीडियो, या फिर रियल वीडियो भी हो सकती है जो आपको मोस्टली जो है लोग जब साथ होते हैं तो वो इस तरह की कोई कंटेंट शेयर करते हैं और जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है तो वो लीक कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सेक्शन 21 के अगेंस्ट अपनी क्लेम फाइल कर सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं और उसमें जो है आपकी सुपर इम्पोज पिक्चर की पोर्नोग्राफी साइट पे लगा दी, आपकी फेक किसी और की बॉडी के ऊपर आपकी पिक्चर लगा दी, आपकी एक्चुअल वीडियो या पिक्चर लीक कर दी, ये सारी चीजें, ये सीरियस ऑफेंस है, ये बेलेबल है, ये नॉट कंपाउंडेबल है, इसकी कंप्लेन आप वापस नहीं ले सकते। 5 साल जुर्माना है और 5 मिलियन रुपीज इसकी फाइन है। और अगर बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है तो 7 साल जुर्माना और 5 मिलियन रुपीज फाइन। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि हम सबके साथ ये हो चुका है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ ये नहीं हुआ। सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, हम सब करते हैं। अच्छा, इसका साइबर स्टॉकिंग में फेसबुक पे कॉन्स्टेंटली कोई रिक्वेस्ट कोई आपको भेज रहा है या फिर कोई कॉन्स्टेंटली आपको कॉल्स कर रहा है या कॉन्स्टेंटली मैसेजेस कर रहा है, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, इस तरह की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, हर फोरम पे होती हैं, अनफॉर्चुनेटली लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल फोरम्स पे भी होती हैं। इसमें अगर कोई आपके साथ स्टॉक करता है उसकी कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं अगर अंडर सेक्शन 24। ये सीरियस नॉट सीरियस ऑफेंस है, बेलेबल है, 3 साल जुर्माना और 3 साल पनिशमेंट, 1 मिलियन जुर्माना है और इसमें कंपाउंडेबल है, इसकी कंप्लेन वापस ली जा सकती है। ये 3 चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। नंबर 1, अगर आपके साथ कोई हरासमेंट है, हरासमेंट की मीनिंग क्या है, काइंड्स क्या है, टाइप्स क्या है, और कोई आपके साथ इस तरह की कोई भी चीज करता है, होस्टिलिटी, बुलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, आपने ऑम्बुड्समैन पे या जाना है या इंक्वायरी कमेटी पे जाना है। इंक्वायरी कमेटी का रोल मैंने आपको बता दिया है।
नंबर 2, आप कोई सड़क पे चलता हुआ इस तरह की कोई बात करता है, पाकिस्तान पीनल कोड में औरतों के ऊपर 3 सेक्शंस प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके अगेंस्ट आप रेमेडी रिलीफ क्लेम कर सकते हो, कंप्लेन इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में 2021-24 मॉडेस्टी पे, डिग्निटी पे और आपकी साइबर स्टॉकिंग के ऊपर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, FIA साइबर क्राइम, ऑनलाइन जाके आप देखें। सो अब ये आज हमने किया। अब मैं आपको बताऊं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के को लाजिम है कि ये सेक्शन 2010 वर्कप्लेस हरासमेंट एक्ट अपनाएं, कोड ऑफ एथिक्स बनाएं, सर्कुलेट करें, इंक्वायरी कमेटी बनाएं। अगर वो नहीं बनाते तो कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई आउटसाइड पार्टी उनके अगेंस्ट ऑम्बुड्समैन में कंप्लेन फाइल कर सकती है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को जुर्माना देना पड़ेगा। सो ये बात याद रखें, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट, अब ये मैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बात कर रही हूँ कि नो द पॉलिसी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, कीप एम्प्लॉइज इन्फॉर्म्ड ऑफ द पॉलिसी, कीप द पॉलिसी अप टू डेटेड, कम्युनिकेट द कंप्लेंट प्रोसीजर, कीप लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, act immediately if you suspect harassment, accurately document suspected incidents, set an example of respectful workplace behavior, have clear expectations that discrimination, workplace and sexual harassment are not tolerated, no tolerance policy होनी चाहिए, guard against retaliation, सबसे important, guard against hostility, guard against bullying, handle investigation as discreetly and confidentially as possible, take immediate steps to stop inappropriate behavior or conduct on as it occurs or is reported. Be sensitive to the feelings of all involved. It is not easy for the complainant, the accused or anyone participating in an investigation. So जरा लिहाज करें, sensitive हो, organizations please, you must accept it. कानूनी तौर पे every company must need to have a code of ethics, inquiry committee and a proper procedure. अगर नहीं है तो आप जाएं ombudsman में जाके उस कंपनी के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं कंप्लेन। Remember, sexual harassment is not your fault. Sexual harassment is not about only sex. Sexual harassment is about power. And you must report sexual harassment at work. Always, always, always. And remember the golden rule, treat others the way you'd want to be treated. So thank you very much for listening to me today. And hopefully हम next किसी तो अच्छे interesting topic पे मिलेंगे. Thank you.